Hmm. Okay, good evening, Jai Bhim, madam. Today is our distinguished speaker, Dr. Sona Jaria Minj, madam. और बाकी जो हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, all they are, I mean, they are all doing good in their life. They are all officers. They are occupying very high positions in different organizations, like ONGC, like GAIL, like BPCL, like HPCL, like state government of Jharkhand and the Bihar, maybe other states. So just hold on, pin. Almost everybody. Yeah, just a minute. ओके मैडम, अनम्यूट कीजिए प्लीज आप. हाँ, अनम्यूट कीजिए प्लीज. या ओके, फाइन. ओके, मिस्टर कारगावकर, यूट्यूब प्लीज. Johar to one and all. Gulgulan Johar, Gul Johar. Yes. बहुत बहुत स्वागत है मैडम. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. या जस्ट या अभी. ओके, सो ओके, गुड इवनिंग एंड जय भीम एंड जोहार. मैडम ने कहा एवरीबॉडी. एंड it's really I mean we are very happy. All India SC/ST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai, on behalf of this program, we have been organizing since last 1 year so many different topics, like reservation policy, like education abroad, so several so many good programs. So we have been organizing through online mode, and this is one program of that series. And today is very special occasion, so we are doing it, this online meeting online. So I am Jagesh Somkuar. I am general manager production in ONGC Mumbai, and also I am chairman of All India SC/ST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai branch. So on behalf of my team members, my office bearers, everybody, I welcome you again to this program, especially our distinguished speaker, Madam Sona Jaria Minj. Everybody knows about her academic excellence and her struggle in life, and then now the position she is occupying. Yeah, is really tremendous. It's really tremendous. Hats off to madam. Hats off to you. And we are really glad that you have spared time for this program, and agreed to join us in this program, the webinar. So from everybody from our team, I welcome you, madam, and everybody, all participants. Yeah. So friends, today is as you know, today is very special occasion to mark the 121st death anniversary of Birsa Munda ji. He was a real freedom fighter, and he fought for the rights of particularly tribal people in that area, land reforms and land rights. And though he lived very short life, but his life is really inspiration to all everybody. So we get a lot of inspiration. India is a country which produce right from Tathagat Gautam Buddha, Samrat Ashok, then come to uh, Mahatma Jyotirao Phule, Sant Kabir, yeah. Then Birsa Munda, then Dr. Baba Saheb Ambedkar, yeah, uh, uh, mm, Shahu Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj. So this is the land of great people, great person, though who have sacrificed everything for the well-being of this countrymen, for these people. They wanted, everybody lives in peace, in prosperity, in harmony. So in ONGC also, through association, we are doing our part to spread the harmony, communal harmony, social harmony, religious harmony, and to get inspiration, to invite distinguished speakers like Madam Minj to this program,
like Dr. Professor Sukhdev Thora Sahab, he attended our program twice. You know, many eminent personalities, they attended this ONGC's Mumbai's program, and they spoke about different issues, Baba Sahib's contribution, then rights and duties also, not only rights, duties also. So friends, uh, today is 121st death anniversary of none other than Birsa Munda. You know, Veer Birsa Munda, and Jananayak, as we fondly refer him, we call him Birsa Munda. This is the very. Let me tell you one thing. This is the first program which ONGC Mumbai is organizing on the death anniversary of Birsa Munda ji, and we are really very happy that you all have joined to this program, and we are really very eager, we're waiting for madam to listen from him about life and mission and struggle of and the message of Birsa Munda, Jananayak Birsa Munda ji. So to start with, I request my friend in association is Mr. Raghunath Kargaonkar. He is our secretary in All India SC/ST Mumbai branch. He is also general manager in geology department of ONGC Mumbai. So I invite him for a introductory as well as welcome speech. Mr. Kargaonkar, please. Thank you, Somkavarji. Jai Johar, Jai Bhim, Jai Adim. I am Raghunath Kargaonkar, and I belong to tribal community from Nagpur, Central Provinces, and I am secretary in this organization, All India SC/ST Employees Welfare Association. Birsa Munda, as everybody knows, he was a brave freedom fighter, Jananayak, and he is also called Bhagwan Birsa Munda. Calling him Bhagwan means it indicates the sentiments of people, what he has done for the people to uplift their lives. All India SC/ST Employees Welfare Association is very proud to conduct this program, and I thank our chairman, Sri Jagesh Sonkuar, for taking initiation. And this All India SC/ST Employees Welfare Association from Mumbai, ONGC, is doing tremendous job and very effective and lively presence in the community development, as many know it. And to this chapter, we have added by doing this first program of Birsa Munda through 121st death anniversary, the another chapter to celebrate the contribution of scheduled tribe STs in particular and SC/ST in general. So I welcome you all for this program. We are very lucky to get the appointment of our Honorable Vice Chancellor, Dr. Professor Sona Jharia Means. I welcome you, Madam. And we are very fortunate and we feel proud being from our community. It gives inspiration to us. You are Vice Chancellor of Sidho Kanu Murmu University, Dumka, Jharkhand. You have got huge academic profile, excellence profile. You hail from Orao tribe, Gumla, from Chota Nagpur. And also you have got the history of social ideologue and activist from Nirmal Means. That is very proud feeling. And you have worked for the rights of underprivileged and a group of Navabuddhas students. You work as president of JNU Teachers Association.
apart from your academic and university excellences. Your schooling from Ranchi, graduate from Chennai, you have done MSc from Chennai, MPhil PhD in computer science from JNU. You have worked as assistant professor, Department of Science, and in Madurai as well as in Bhopal. Published several papers of national and international importance. And you have been promoted to assistant professor in JNU, associate professor in 2005, and finally, you have been appointed as vice chancellor. We, the poor people, tribal people who don't have any background, who don't have any economic support, social support, even no political support, and we always face a lot of struggle, tough time. But facing those, you stand with the time and proved yourselves. So I really thank you, and we feel proud to have here. We will be talking about the Birsa Munda ji death anniversary, his struggle. Speakers will speak. And what I found today is most of our friends from the Jharkhand. We didn't get much time, but now I'm very happy to see my friends. They have joined it. So once again, I welcome you all. Welcome, madam. And thank you very much. Over to you, Somkarji. Hello. Kumarji, you're not unmuted. Oh, sorry. Now it's okay. I'm okay. Thank you very much, Mr. Kargavkar जी. और आज जो हम लोग जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग मैडम से सुनने वाले हैं इनफैक्ट, तो हम लोग थोड़ा हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स करेंगे तो दैट वुड बी बेटर आई थिंक, या क्योंकि कुछ लोग दे मे नॉट बी कंफर्टेबल विद पूरा इंग्लिश में, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. सो लेट अस हाउ थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में. So very rightly said by Mr. Kargavkar, this is unique example really. Madam, now she is vice chancellor in Jharkhand university, या और उनका जो बैकग्राउंड आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स से लेकर कंप्यूटर साइंस तक उनका पूरा वो है, और उन्होंने एमपीएल और पीएचडी बाकी डिग्री की है, और उसका दिस इज द रिकॉग्निशन वी गेट, ये जो कंटिन्यूअस जो एफर्ट्स है, कंटिन्यूअस जो क्या बोलेंगे उसको, बाबा साहब के पदचिन्हों पर अगर हम चलते हैं, बाबा साहब ने क्या पहला मंत्र दिया था? शिक्षा, या एजुकेट फर्स्ट, देन एजिटेट, देन ऑर्गेनाइज, या दिस इज द सीक्वेंस. सो मूल मंत्र जो है, फर्स्ट मंत्र इस बाबा साहब कौन सा? एजुकेट है. सो दिस इज द एग्जाम्पल. मैडम ने वो प्रूव करके दिखा दिया है कि बाबा साहब का जो पहला मंत्र है उसको हम अगर फॉलो करते हैं एवरीबडी, तो हम वी कैन रीच टू दैट लेवल, वाइस चांसलर लेवल, है ना. और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, एज वेरी राइटली सेड बाय माय फ्रेंड मिस्टर कारगावकर, कि ये वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मैडम, कि आपने इतना जिंदगी में इतना स्ट्रगल जो किया है, क्योंकि आपकी जीवनी हमने पढ़ी है जो नेट पे अवेलेबल है, आपके जो इंटरव्यूज जो अवेलेबल है नेट पे, उसके थ्रू वी केम टू नो कि कितना स्ट्रगल इसमें है, और कितना उसमें मतलब कंटिन्यूस परस्यूएशन उसके पीछे, नहीं नहीं मुझे जिद सम्यक जो संकल्प जिसको हम कहते हैं ना आर्य अष्टांगिक मार्ग में, सम्यक संकल्प जिसको हम कहते हैं, वो सम्यक संकल्प जो है आपने किया, और आप आज इस मुकाम में है, इस वाइस चांसलर, लाइक वेरी प्रेस्टिजियस एक पोजीशन है, और वहां पर आप है मैडम. सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. Now, I request, I invite Mr. Siddharth Kamble. He is also General Manager in ONGC for opening remarks of today's program, and then we'll hand over this program to Madam. उनका speech हम सुनेंगे. या Mr. Siddharth Kamble, please. Yeah, Kamble ji, yeah, go ahead, please. Good evening to all. Thank you, Jagesh bhai.
for giving me this opportunity. Madam means all the dignitaries and my dear friends, Jananayak, धरती आबा, बिरसा मुंडा, इनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी को हम जानते हैं, महात्मा गांधी जी को हम जानते थे। इनके पहले ही जिन्होंने कार्य यहाँ पे आरंभ किया हमारे देश में, 1875 में उनका जन्म हुआ था, 15 नवंबर। वो हम लोग कैसे भूल सकते हैं? हमें तो भुलाया गया है, ऐसे मैं मानता हूँ। अभी when we go through the literature, whatever is available, and mostly it is in the British records, what we can see is that he is the person who has transformed himself with his open mind. He went to the missionary school. He went there and then found that how Britishers are exploiting. Then he changed over. He was rather told to convert, and then he again reconverted, something like that. And that shows the open mind and the Krantikari mind that he is having. He struggled throughout his life. He struggled throughout his life for the betterment of his fellow brothers and sisters. He was, Britishers called it a mutiny kind of thing, that he was against the British Empire. No, he was not. He was a reformer, and he always strived for the betterment of his fellow brothers and sisters. So, if I can say that even in his death, as we all are aware, the Chota Nagpur Tenancy Act was passed after his death. So he has sacrificed himself and took the measures so that his fellow brothers and sisters can live in peace. We have such a learned Madam Means with us. So I will pass on the baton to her to explain further. These were my opening remarks. Thank you. Thank you very much, Siddharth bhai, for your opening comments, opening remarks. You very rightly said, no, Siddharth ji. देखिए 15th of November 1875 और 9th of June 1900. See the time. कितना टाइम है? सिर्फ हार्डली 25, you know. But 25 साल में भी उस महामानव ने, उस जननायक ने वो करके दिखाया कि आज हम सारे यहाँ बैठे उनको याद कर रहे हैं. सो दैट शुड बी द इंस्पिरेशन जो लाइफ से मिलना चाहिए. तो वो और इसके बारे में फर्दर जो है उनके उनके मिशन के बारे में, उनके कार्य के बारे में. सो नाउ आई एम प्रिविलेज, आई एम रियली वेरी हैप्पी also to invite Madam Sona Jharia Minj ji for her for her, you can say, discourse on this today's topic on Birsa Munda's death anniversary. Madam, please. Yeah, welcome, Madam. Please. Your mic is okay. Just yeah, now it's okay. Yeah. Thank you very much, Somkumar ji and Kargaonkar ji and Kamble ji, on behalf of All India SC/ST Staff and Officers Association, I assume, of ONGC, and on behalf of Mumbai ONGC, all of you have taken this Krantikari step of organizing this event, this evening only, today evening, because a number of people try to do it 1 day advance, 2 days advance, and again a convenient day, weekend mein kar lenge. But all of you have committed yourself and shown your commitment towards the kind of responsibility the society expects out of you and me. And I think just organizing this event this evening shows your commitment to that. So Krantikari salam to you all. Ul Gulan Johar, as I mentioned, Ul Johar, and Jai Bhim, Jai Dharme. I really want to make a mention of this,
that as I was something about my life and so-called struggle was being mentioned, I feel each one of you are the proof of how a struggle or an obstacle in the way of people from deprived sections view it, and each one of you are the proof of the victory that our people or we have. That's the metal which the oppression suppression has made out of each one of you. So at this time, I want to say salam to each one of you, because you too are achievers, and each one of you are not examples. And I want to make a mention, I want to stress this point. You are proofs of victory over the hurdles that had either historically come on your way or has been systemic and systematically brought on your journey, your life journey. So salam to each one of you for that. And so I'm not a hero alone, but each one of you is a hero. And in fact, just few days ago, on 5th, one of my friends from Delhi University, एक मेरे मित्र दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोम कुमार जी, आपने कहा कि हम हिंदी इंग्लिश में कर लेंगे। मुझे लगता है हम लोगों की जो इधर बिहार झारखंड के लोग हैं, हमारी हिंदी भी मुश्किल ला सकती है, इसलिए इंग्लिश में कर लेना चलेगा मैडम, चलेगा। ओके। तो आई विल कॉन्शियसली ट्राई टू स्विच बिटवीन, मतलब दोनों भाषाओं में मैं माइग्रेट करने की कोशिश करूंगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब मुझे लगे कुछ कठिन शब्द मैं बोल रही हूँ तो इंग्लिश में चली जाऊंगी। तो मैं बतलाना, आई वाज ट्राइंग टू कोट, मेरे एक टीचर कलीग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, और वो 5 जून को मेरे साथ एक वार्ता में इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि आप मेरे नाम के साथ एक फ्रेज चल रहा है जो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी है कि तुमसे ना हो पाएगा, so but then मेरा ये मानना है कि आप में से हर एक के सामने भी ये घटना आई होगी, तुमसे ना हो पाएगा, और आपने उस स्पीड ब्रेकर की तरह जो बाधा डाली गई थी ना, उसको जंप करके छलांग मार के आप जहां भी पहुंचे हैं, आप वहां पहुंचे हैं। तो इनफैक्ट मैंने किसी और ग्रुप में बोला है कि मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम लोग 100 ऐसी कहानियों को जमा करें जो कि तुमसे ना हो पाएगा के कारण हम ये अचीवर बन पाए हैं। So I hope somehow some of you would be, if you are approached or if you have a very nice story which should be brought to, not हम सब के लिए तो बहुत जानने के लिए एक इंफॉर्मेशन केयर होगा, परंतु हमारे बाद की पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशनल वॉल्यूम होगा, और हमारे उन सभी मित्रों के लिए एक चैलेंज की बात होगी कि जब हमें चैलेंज किया जाता है तो उसका नतीजा आप और मैं होते हैं। तो आई थिंक वो एक 100 कहानियां जो तुमसे ना हो पाएगा वाली कहानियों का संग्रह हम लोग अगर किसी समय पे करने के लिए ठान लेते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप में से कुछ लोग भी अपनी कहानियों को उसमें डाल सकें, ताकि ये एक ऐसा वॉल्यूम बने, क्योंकि आजादी के इतने साल बाद भी अगर यही सवाल हमारे शहर के स्कूलों में भी अगर आपके या मेरे बच्चे को फेस करना पड़ता है, गांव में तो पूरी क्लास को शायद फेस करना पड़ता होगा, परंतु आपके या मेरे बच्चे को शहर के स्कूल में अभी अगर इस तरह के सवाल को फेस करना पड़ता है, तो उनको कभी ना कभी ऐसा ना हो कि उनका मोरल लो हो जाए। मैं यहाँ से स्टार्ट करके अब मैं जाना चाहूंगी आज के इस दिवस के महत्व पर, जो कि शहीद या वीर अमर शहीद बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस में आप लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। बिरसा मुंडा जी, जब मैं छोटी थी तब से मैंने उनकी फोटोग्राफ को या उनकी छोटी छोटी ये बनता था जो कि ट्रॉफी की तरह या ऑनर की तरह मेमेंटो बनता था और लोगों को दिया जाता था, और तब से मैंने सीखा कि
वीर बिरसा मुंडा बहुत ही छोटी उम्र में, 24 साल की उम्र कितनी होती है, हम में से यहाँ पर सारे लोग, मैं तो 24 गुना जो भी होता है 48 से भी बड़ी हूँ, तो इसलिए मेरी उम्र की से आधे से भी कम उम्र में उन्होंने जो अपने कार्य जीवन काल, अब सोचिए 24 साल की उम्र में से 10 साल तो खेलते गुजर गए होंगे या 8 साल तक, और जो भी उनका अनुभव, क्योंकि परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां कुछ इस तरह थी कि उनके परिवार को इधर से उधर घूमना पड़ रहा था, और इस तरह से जब एक जगह से दूसरी जगह पलायन की तरह उनके परिवार को होना पड़ा, और इसी बीच बिरसा ने बहुत सी चीजों को, बिरसा जी ने बहुत सी अपनी चीजों को ऑब्जर्व किया होगा, और जब परिस्थितियां विकट हो गई और उसको भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, मतलब उनकी ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी थी वो हो सकता है इनहेरेंट हो सकता है थोड़ी शिक्षा जो उन्होंने स्कूल में पाई थी उससे हो, क्योंकि ये हम आजकल तो गूगल बाबा सबके क्वेश्चन का आंसर देते हैं परंतु सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं हमें मिल पाते, पर जो भी हमें लिटरेचर उनके जीवन के बारे में मिलता है कि उनके एक शिक्षक थे जिन्होंने उनको और भी गांव के छोटे स्कूल से और भी आगे की शिक्षा के लिए दूसरे स्कूल में रेफर कर दिया था, और थोड़ी स्कूली शिक्षा बिरसा मुंडा को मिली, परंतु बहुत सी दूसरी चीजें जो उनके सामने आई, हो सकता है उनके जो प्रश्न थे वो उनका बोला जाता है कि वो बहुत प्रखर बुद्धि वाले थे। He was a smart student. He was a challenge to probably the teachers. और उनके उन चैलेंजेस या उन सवालों का जवाब जब नहीं मिल पाया तो उन्होंने शिक्षा छोड़ दी, और उसके बाद परंतु बहुत सी दूसरी चीजों को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, और केवल 24 में से चलिए 8 साल निकाल देते हैं, बचते हैं 16, क्या पूरे 16 साल उनका जीवन एक्टिविज्म का रहा होगा? क्या वो खेलने कूदे नहीं होंगे? क्या उन्होंने अपने घर में मवेशियों को, जैसा हम आदिवासियों के परिवारों में होता है कि मवेशी सबके घर में होते हैं, या तो जिनके अपना घर इतना संपन्न नहीं होता, तो दूसरों के घर में जो काम करते हैं, तो बच्चे बचपन से ही बच्चों को लगा दिया जाता है मवेशियों को चराने का काम, तो वो भी किया था उन्होंने। और जैसा प्रायः हम में से यहाँ जितने भी आप लोग आदिवासी सेटअप से या आप लोग वाकिफ हैं ऐसे परिवारों से, देखेंगे कि जब बच्चे या जवान लोग भी मवेशी चराने के लिए जंगलों की ओर चले जाते हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ यंत्र हाथ का बना रहता है, और उधर में बांसुरी, तारा वगैरह वगैरह वो बजाते हैं, गाते हैं, और तो ये भी उनके स्किल सेट को इंडिकेट करता है कि ही वाज अ ब्राइट बॉय। और परंतु साथ ही जब उन्होंने देखा होगा, और आप में से कुछ लोगों ने अगर बुलबुलान की फिल्म बनी थी उसको भी देखा होगा, तो आई मीन he was faced with violation of human rights, है ना? लोगों को जिस तरह से ट्रीटमेंट जमींदारों के द्वारा हुआ, टैक्स कलेक्टर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी था टैक्स कलेक्ट करना, परंतु साथ ही साथ उस समय जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 7 ऑफ 1882 जो बना था उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, और जिस क्षेत्र में बिरसा मुंडा बढ़ रहे थे वहां जो ट्रेडिशनल मुंडाओं का ट्रेडिशनल भूमि थी, जंगल थे, उसको सरकार का अधिग्रहण हो रहा था या किया जा रहा था। एंड सो हियर इज अ सिचुएशन ऑफ ट्रेडिशनल systems of Adivasis and the state, उनसे जो एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हो रही थी, और उसके साथ साथ इतना ही सफिशिएंट नहीं था, उसके साथ साथ जमींदारों का भी जोड़, तो लोग अपनी ही भूमि को छल से गंवा दिए थे, और उसके बाद केवल गंवाने की बात नहीं है, जिस प्रकार के एट्रोसिटीज होते थे, अगर हम लोग सभी जानते हैं जब जमींदारी प्रथा की बात होती है तो सभी क्षेत्रों में लगभग यही हुआ था।
टैक्स कलेक्ट करने के लिए हर प्रकार के अट्रॉसिटीज को अप्लाई किया जाता था। तो इन सब को बिरसा ने देखा और मेरे ख्याल से ये जो आग उसमें उनमें थी वो इन चीजों को एक्सेप्ट करने से उनको मना कर रही थी, और इसके लिए उन्होंने काफी सोचा होगा, क्योंकि अब जब मैं उनकी एक्शन की ओर आती हूँ, एक तो चीज थी कि he observed the injustice that happened around himself. Now injustice to the entire community, जो मुंडाओं के जंगल थे उसका अधिग्रहण हो रहा था, तो यहाँ स्टेट पावर जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी उससे कोलाइड केवल नहीं हो रही थी, उसको सुलझाने का कोई तरीका नहीं अपनाया जा रहा था, परंतु उसको बाय फोर्स उसको ये किया जा रहा था, ये सोचते हुए कि आदिवासी तो कुछ है ही नहीं, वो क्या है, उनसे क्या ये उनसे नेगोशिएट, अगर थोड़ा भी सरकार के पास इक्वालिटी का वैल्यू होता, लोगों को इक्वल मानते, तो शायद वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आते और नेगोशिएट करने की कोशिश करते, पर ये नहीं था। उस फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर जबरदस्ती लागू किया गया। इसका क्या मतलब है, अगले को नॉन इक्वल माना गया। और आप लोगों में से बहुत लोग इंजीनियर हैं और आप और मैं जानते हैं कि किसी इक्वेशन में अगर इक्वालिटी सिंबल आती है तो किस लिए डाला जाता है। इट इज मेंट टू बी इक्वल, इक्वल पीरियड, x is equal to whatever formula, that formula must I mean both sides of equality symbol have to be equal, right? तो पर ये इक्वालिटी तो उस समय की सरकार में, और I'm very sorry to state that you and I also continue, अभी इतने सालों बाद, बिरसा मुंडा की शहादत के 121 वर्ष बाद, वो तो हमारे आदिवासी नायकों में से तीसरे और लगभग अंतिम हैं उस लेवल के। उनसे पहले सिद्धू कान्हू मुर्मू 1855 में थे, उनके भी हुल इसी प्रकार की परिस्थिति में निकला था, और 1784 में टीका मांझी का था। ओके, तो इन सभी नायकों ने जब इस प्रकार के अतिक्रमण के अधिग्रहण के विरुद्ध अपनी बात नहीं रखी, बात तो किया ही नहीं गया इनसे, तो इसलिए इन्होंने विरोध किया। ओके, और ये जब विरोध किया तो उन्हें तो विद्रोही बना दिया गया, मतलब कि क्रिमिनल बना दिया गया, और सो इनके विरोध को इंक्रिमिनेट करते हुए उनको अगेंस्ट स्टेट माना गया। और बल्कि जब मेथोडोलॉजी में अगर मैं आऊं बिरसा मुंडा जी की, तो उनका स्लोगन था अबुआ राज एते जना, महारानी राज टुंडू जना। इसका मतलब है let the kingdom of the queen be ended and our kingdom be established. रानी का राज समाप्त हो और हमारा राज हो। ओके, और ये एक बहुत ही गहन सोच है जिसको अगर आपकी इस फोरम में तो नहीं, पर मैं एकेडमिक फोरम में जरूर बोलना चाहूंगी कि दिस इज अ थॉट। इस थॉट पे काम आज तक लोगों ने क्यों नहीं किया है? अनफॉर्चुनेटली मैं साइंस पढ़ी हूँ और कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की हूँ, कह के मैं अपने आप को एग्जाम्प्ट भी नहीं कर सकती। व्हाई? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, चाहे तो अपने पेरेंट यूनिवर्सिटी में रही हूँ, चाहे तो अभी सिद्धू कान्हू मुर्मू में। University is supposed to be a platform for engagement of people and thoughts from all disciplines, all areas, and everybody must sit down and thrash them out and bring out what is the interpretation, what is its relevance to the situation today. तो ये एक थॉट है। और फिर बिरसा मुंडा ने फिर देखा कि उस समय लोगों को जमा करने के लिए कौन से प्रोसेस से या कौन से मेथड से और मेथोडोलॉजी से काम ज्यादा इफेक्टिव होगा। एंड बिलीव इट और नॉट, आप लोग बिलीव इट और नॉट, आज भी वही लागू है। हम इमोशंस और मान्यताओं के बेसिस पे, बेसिक और इन नॉट मिंसिंग विथ वर्ड, धार्मिक मान्यताओं के बेसिस पे अभी भी लोगों को इमोशनली स्टीयर कर लेते हैं। और यही सिस्टम उसी का, इसका मतलब क्या है, हम लोग इंडियन लोग
एंड ऑफ द डे अभी तक शिक्षा ने भी हमें चीज नहीं किया। तो और इसीलिए बिरसा मुंडा जी ने धरती अपने आप को भगवान का अवतार की तरह खड़ा करके, ताकि सोचा कि लोग अब उनकी बात को मानेंगे, और वो जो बातें कर रहे थे क्योंकि वो लॉजिक थी, क्योंकि वो लोगों की सिचुएशन से स्पीक कर रहे थे, और इसलिए लोगों ने उनकी ओर ध्यान दिया जो उस समय उस प्रकार के अतिक्रमण के पीड़ित थे। और ये जो थॉट था, ये एकदम सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट है, जिसको इस थॉट को, बिरसा मुंडा के थॉट को अभी तक उतना एकेडमिक स्पेस नहीं मिला है जितना उनको, और उनको केवल मूर्ति, उनकी फोटोग्राफ और उनके 15 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर और 9 जून को उनके शहादत दिवस पर हम लोग मनाकर हम लोग रैप अप कर लेते हैं। हम बार बार बोलते हैं ओ स्कूल के सिलेबस में केवल एक पैराग्राफ है बिरसा मुंडा के बारे, हमारे दूसरे हीरोज के बारे नहीं है। हो सकता है हमारे महाराष्ट्र में कितने हीरोज रहे होंगे जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया होगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के भी, बिलीव मी, नॉर्थ ईस्ट में भी खासी, there was a खासी पर्सन जो कि लगभग उसी समय बिरसा मुंडा के वो कॉन्टेम्पररी थे, और उन्होंने भी उस समय स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। ये सब स्टोरीज नहीं है। और पहले तो ब्रिटिश साम्राज्य ने, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी जिस प्रकार की थॉट प्रोसेस या डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम रही है, उसने इन सभी स्टोरीज को, जब महारानी लक्ष्मीबाई की चर्चा होती, झलकारी बाई बिल्कुल गुमनाम रहती है ना, तो हमने इन स्टोरीज को भी लुप्त होने में अभी तक ध्यान नहीं दिया, या उसमें इस तरह से साइलेंट रह के अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उनकी गुमनामी में। और इसलिए मैं आज आप लोगों का फोरम इतना एकेडमिक फोरम नहीं है, इसलिए मैं कुछ बातों को बोलकर रैप अप करूंगी। एंड आई होप वी कैन हैव दिस इज अ बिगिनिंग विथ योर फोरम, एंड आई होप ये हमारा जो एक रिलेशन आज शाम को बन रहा है, that would go a longer way, not personally with me but with Sidhu Kanu Murmu University। तो मैं उस पर बाद में आऊंगी। बट इसी आज भी अगर आप और मैं जहां भी हैं, चाहे हम जितना भी बोलते, आप लोगों बोलने की रिजर्वेशन और दिस दैट एंड दी अदर, ओएनजीसी जैसे पीएसयूज में ये चलता है या नहीं चलता, बट वन थिंग आई एम कॉन्फिडेंट कि आप में से हर एक ने अपनी काबिलियत को प्रूव किया है, और इसलिए आप जहां हैं वहां हैं, एंड देयरफॉर ईच वन ऑफ यू इज अ विक्टर। पॉइंट नंबर 1, आप अपनी जहां पर भी बैठे हैं, जहां पर भी आपका कार्य क्षेत्र है, आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू नोटिस, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ ऐसी बात which is not right, which is not just, which is not how what makes you, and which are things जो आपको uncomfortable करते हैं। I think what I have learned and from probably my early childhood, और इसलिए वो बातें मेरे बाद में दिखाई देने लगी जब और मैं इस तरह से करने लगी कि इनजस्टिस को सहन करना इनजस्टिस करने वाले के बराबर है। तो therefore one has to speak out, at least speak to another person, कम से कम किसी और के साथ बातचीत तो करें। हो सकता है आपके साथ नहीं हो रहा है, पर आपकी आंख के सामने हो रहा है, उसको इस फोरम में, आपके इस फोरम में कम से कम 1 या 2 व्यक्ति ऐसे हों जिनसे बातचीत किया जा सकता है, जिनसे बातचीत करके ये सोचा जा सकता है कि क्या किया जाए। आप और मैं अभी, हम तो धरती आबा करके या धरती माता बोलकर अपने आप को ये नहीं करेंगे, पर हमें जो रोल्स दिए गए हैं और हमें जो अथॉरिटीज दी गई हैं, उस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन
के अंदर जो भारत के हर नागरिक के लिए एक परिकल्पना दी गई है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस वगैरह, उसको 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 एग्जीक्यूट करने के लिए या उस ड्रीम को आगे बढ़ाने में क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय trying to fix or trying to speak about, at least speak about the kind of wrong things that we may observe. मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबके साथ ऐसा होता होगा, पर किसी के साथ भी जब आप अथॉरिटी के लैडर में ऊपर 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 जाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें दिखाई देती है that you can't decline from, है ना। तो बात कर सकते हैं। नंबर 2, एक्शन भी ले सकते हैं। एटलीस्ट हम लोग यूनिवर्सिटीज में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा सेल या ये बनाना मैंडेटरी है यूजीसी की ओर से, कि जिसमें ST/SC स्टूडेंट्स या स्टाफ के ग्रीवांस के लिए ST/SC सेल हो फॉर्मली, या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। अगर ये नहीं है तो I don't know whether it can be enforced in your setups or not, पर कम से कम उसको कैसे ये जो atrocities हैं, क्योंकि एक्ट तो बना हुआ है ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसको अपने वर्क स्पेस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ये आप और मैं, जो बिरसा मुंडा ने तो अपने खुद को धरती आबा बोलकर अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ताकि जो इनजस्टिस हो रही थी, जो रॉन्ग हो रहा था, केवल लोगों के साथ नहीं, परंतु याद कीजिए मैंने कहा था कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, तो ये बिल्कुल आदिवासी कल्चर और उनकी एग्जिस्टेंस की बात थी, उसके ऊपर अतिक्रमण था। तो उन्होंने आइडेंटिटी के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा था, आइडेंटिटी के उसको भी उन्होंने ना स्वीकार करते हुए अपना ये मूवमेंट काफी सोच के किया होगा। और इनके देखा जाता है कि 1893 से 96 तक में उन्होंने लगभग 3 साल में ज्यादा एक्टिविज्म उनका दिखाई पड़ा, परंतु जो ऑपरेसिव ताकतें और या जो पावरफुल पावर होता है, तो आई मीन दे हैव मल्टीपल वेज टू कर्टेल दिस, राइट। और फिर उनको तो जेल हो गया, हो सकता है आप और मेरे ऊपर दूसरी चीजें आ सकती हैं, बट शुड वी बी स्कैर्ड ऑफ दैट, वो एक सोचने की बात है। कोर्स वन हैज टू बी वाइज। यहाँ मैं बिल्कुल अंधाधुंध दिमाग का इस्तेमाल किए हमेशा एड़ी चोटी एक रखने की बात नहीं कर रही हूँ, बट इट शुड बी डन प्रूडेंटली एंड वाइजली, क्योंकि जब हमारे ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कितनी सफाई से होती है। ओके, I am told, I mean, this is a phrase, small places have small nuisances, big places have big ones, in fact smart ones. तो इसलिए अगर वो स्मार्टली होते हैं, एट्रोसिटीज की बात या विक्टिमाइजेशन की बात या डिस्क्रिमिनेशन की बात, तो उसका जवाब भी स्मार्टली ही देना होगा। ओके, so that is good too. And so आप और मैं एक ऐसे जगह पे हैं, हो सकता है we can execute and implement the constitutional provisions or safeguards which is meant to, which is enshrined in the constitution. और अगर उसको कर सकते हैं, not individually, maybe together, and maybe those जो एक लेवल पर, एक कैडर पे होते हैं, अगर आप में से आपस में बातचीतें होती हैं, तो एक दूसरे से सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, you know, because जब आप एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो आप घेरे में आएंगे, पर जब आप घेरे में आएंगे तो क्या आप अपने को अकेला पाएंगे? That should not happen. So that was my second point. And the third point is make sure किसी ना किसी तरह आपके फुटप्रिंट्स, जो आपके काम करने का जगह है, कि आपका कार्यस्थल है,
वहां आपका कुछ ना कुछ फुटप्रिंट तो छूटे। केवल आपके नाम के साथ आपका सोशल बैकग्राउंड का नहीं, परंतु ऐसा फुटप्रिंट जो आपके काम करने के प्लेस के भी बाहर का हो सकता है। एक चीज तो मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का बतला सकती हूँ, और मुझे लगता है कि ये आप पर भी लागू होता है, आप सब पर भी लागू होता है, कि जब हम लोग किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं बाय गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हो या उसके बिना भी, then there is this constant pressure कि हम बेटर देन अदर्स परफॉर्म करते रहें। तो इस प्रेशर, ये एक प्रेशर है, और उस प्रेशर से अपने से जूनियर लोगों को, जूनियर या फिर अपने से यंगर बोलूं, मैं जूनियर नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की बहुत होती है, पर मैं साफ साफ ये बोलना चाह रही थी कि अपने से यंगर लोगों को इस प्रकार के प्रेशर्स और स्ट्रेस के बीच में कैसे नेगोशिएट या नेविगेट किया जा सकता है, उसको अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं, तो ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलग अलग यूनिट्स हैं, आप बॉम्बे यूनिट हैं, तो उनके द्वारा एक बहुत ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है जहाँ की लोग अब जब भी ओएनजीसी में बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को तो मुंबई पोस्टिंग दिया जाए ओके। और लाइकवाइज जिस प्रकार से आपका AISESTEWA है, वो मुंबई यूनिट नहीं, दूसरे यूनिट्स भी एक दूसरे के गुड प्रैक्टिस और इस तरह के प्रैक्टिसेस को रेप्लिकेट कर सकें, कॉपी नहीं रेप्लिकेट कर सकें। और इसी फुटप्रिंट की ही कंटिन्यूएशन में मैं अपना एक एजेंडा पेश करना चाहूंगी आप सबके सामने। एंड एज आई सेड अर्लियर कि मेरी आशा है कि आज की ये शाम 9 जून 2021 की ये शाम और इस समय के कार्यक्रम के द्वारा मुझे आशा है कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी और ओएनजीसी और ओएनजीसी मुंबई, या जैसे भी आप लोग मुझे इस पर मार्गदर्शन देंगे, एक रिश्ता कायम हो रहा है। और इस रिश्ते के तहत अगर हमारी इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं, और इन द सेंस फैसिलिटीज जो जनरल बेसिक नीड्स है उसके भी, इतना तक कि ये होता है कि जब बारिश होने लगती है तो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स है वो भी भाग जाते हैं घर। बतलाइए क्यों? बारिश में का मजा लेने के लिए नहीं, वो खेती करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनके घरों में उनके परिवार इतने संपन्न नहीं है कि वो दूसरों को एंगेज कर सकें। और आजकल तो ऐसा है कि ना इतना पलायन हो गया है कि जो मजदूरी देकर भी काम कराना चाहे तो मजदूर मिलते नहीं। अभी लॉकडाउन के तहत I have no qualms in sharing this with you. JNU की हमारी not mine but मेरी कलीग स्टूडेंट थी जो हरियाणा की है, तो उसने मेरी कलीग को बतलाया कि मैम आई एम अनएबल टू डू दीज थिंग्स, आई एम अनएबल टू कीप अप विथ योर पेस। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के तहत सारे मजदूर चले गए हैं और हम लोगों को दिन में खेत में जाना पड़ता है। सो एंटायर फैमिली वाज एंगेज्ड विथ दोज एग्रीकल्चरल वर्क। तो ये मेरी हमारी ये स्टूडेंट जो जेएनयू की पीएचडी स्टूडेंट है वो ये कह रही है, तो सेम सिनेरियो हमारे संताल परगना के सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी है। आई एम वंडरिंग इफ देयर इज सम काइंड ऑफ outreach activity which can help them in their skill development or personality development, or even introduce them, or even to I mean something that will do that will help them in making themselves little better employable। इस तरह की अगर कुछ आप लोग डिजाइन कर पाएंगे, and we can continue to have this relation not at a personal level but institutional level, which can become which can be for I mean it can start with you, designing can happen with you, but it should become a CSR of ONGC, you see।
और यहाँ मैं किसी एक चीज के लिए नहीं फंड की बात बोल रही, बट आई एम इंटरेस्टेड इन द ह्यूमन रिसोर्स that goes through this university's gates, जो मैं मेरे पीछे उसका पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये तो केवल एक कैंपस है, पीजीटी कैंपस का, यूनिवर्सिटी कैंपस का गेट है, बट वी हैव believe it, I hope you, some of you would be able to believe at this point of time I should be having maybe more than 75,000 students, undergrad and postgrad. तो इतने स्टूडेंट्स को क्या ये यूनिवर्सिटी एजुकेट कर रही है? क्या ये यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबल बना रही है? क्या ये यूनिवर्सिटी उनके ब्राइटर फ्यूचर के लिए वैल्यू एडिशन कर सक रही है? मेरा वैल्यू एडिशन का पैमाना है कि बिसाइड्स देयर एजुकेशनल डिग्री एंड और बिकॉज एजुकेशन का मैं आई एम फ्रॉम एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन का पर्पस एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ नहीं है, एजुकेशन का पर्पस एजुकेट करना है ऑन सब्जेक्ट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। और एजुकेशन गोज, एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन होता है, रिसर्च और वो सब होता है, तो there is one linear path towards academics. But other, I mean, 75,000 लोग तो PhD नहीं करेंगे ना सिद्धू कानू मुर्मू में, and but they need employment, and the kind of employment that is available to them अभी इस समय, okay, 2 years from now, 1 year from now, 3 years from now, और उसके लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए वैल्यू एडिशन बिसाइड्स द सो दिस, एंड आई फील जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी और ओएनजीसी का टुगेदर एक फुटप्रिंट बन सकता है। आपका फुटप्रिंट हमारे कैंपस में और हमारा फुटप्रिंट आपके ओएनजीसी में, सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ फुटप्रिंट दैट आई एम लुकिंग फॉर, एंड I hope with some of you I'll be able to take this conversation further beyond 9th June 2021. And it's a very emotional day for me, not for the reason that it is someone's shahadat divas, but also I joined this office on 9th of June 2020. So I completed the 365 days yesterday, और आज से मैं 3 year का second year start करती हूँ, and I am hopeful. I have already got a cell which is named Scholarship Training and Internship. इस तरह का सेल मैंने बनाया है क्योंकि हमारे एरिया में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के बारे भी, जो बिसाइड्स द स्टेट की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उसके अलावा और कुछ पता ही नहीं चल पाता हमारे स्टूडेंट्स को। तो sometime there could be a special scholarship agar ONGC announce karti hai, there may not be anybody who might be eligible in Sidhu Kanu Murmu University, पर अगर information आ जाता है तो हो सकता है सब कुछ लोग अपने आप को eligible बनाने की कोशिश करें, and I'm looking forward to such kind of cooperation with all of you. This ISCST EWA being a bridge between Sidhu Kanu Murmu University and ONGC really. And अगर हम लोग इस तरह से hand holding या handshake का रिश्ता अगर हम बना सकते हैं, then I would be very grateful. And और मैं एक बार फिर आप सबों को अपने इतनी ही बातों के साथ मैं आज के इस डिलिब्रेशन को यहाँ समाप्त करना चाहूंगी। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम, मुझे क्योंकि as I said, each one of you is a proof that no hindrance, no hurdle no hurdle is enough to stop you. और आपके जैसे आपके बाद आपके पीछे भी बहुत लोग आएंगे जो कि आपके समान ही इन सिमिलर हर्डल्स को क्रॉस करते हुए अपने फिनिशिंग लाइन की ओर जा सकेंगे, अपने एस्पिरेशंस को कंप्लीट कर सकेंगे। तो आई होप जैसा मैंने कहा कि 100 स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज आपके बीच से भी आ जाएंगी अगर तुमसे ना हो पाएगा वाली स्टोरी में। ओनली थिंग इज आई एम ट्राइंग टू सी कि मैं तभी से देखने की कोशिश कर रही हूँ
मुझे क्या लता जी दिखाई दे रही हैं. I think there was another name, मेरी तेल्मा or somebody. मैं हमारी लेडी कलीग्स को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो आपके बीच थोड़ा लेडी कलीग्स की कमी नजर आ रही है. लता जी, आई होप अगली मीटिंग में या अगले संवाद के समय हम कुछ और भी अपनी कलीग्स को लेडी कलीग्स को देख पाएंगे. And I'm sure this is because of the way ONGC system is. So if I have been able to see only 2 of you, maybe there are more. So you are also heroes, okay? So a salute to both of you also. I hope I'm not missing anybody, but kudos to each one of you. क्रांतिकारी सलाम आप सबको. जय भीम, कुल जोहार. उलगुलान के आज की घोषणा के आज नहीं, घोषणा तो दूसरे दिन हुई थी, बट उलगुलान ये चलता ही रहना है till such time objectives of the preamble of constitution are not fulfilled. अगर हम आज अपना रोल करेंगे तो हमारे नाती पोतों को थोड़ा बेहतर भारत मिलेगा. हमारे बच्चों का भारत तो आधा हो ही चुका है. ओके, so I think let us do whatever is possible. Let us be determined to do things. Let us decide to be uncomfortable with things which are not in line with constitution. और इसीलिए तभी हम ऐसे अमर शहीदों के दिवसों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो वो वर्थ होता है, क्योंकि अगर ये दिवस हमें इंट्रोस्पेक्ट नहीं करने देते तो फिर हम तो अगर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में हम चाय याद कर लेते और हम विदा हो लेते. बट आई थिंक कोविड के समय जब हम एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं तो हम एक साथ सोच पा रहे हैं. So that's the positive side. Thank you very much. सोम कुमार जी, आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद. और मैं आप में से हर एक को आज की बधाई देते हुए मैं आशा करती हूँ कि अगले साल आप अपना कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरी बतला पाएंगे. मैं तो नहीं रहूंगी पर किसी और को बतला पाएंगे. So thank you very much. थैंक यू वेरी मच मैडम. मैडम जी ने बहुत ही सही शब्द, बहुत सारी बातें की है. हाँ, ये नॉट ओनली जननायक बिरसा मुंडा जी के बारे में, बाकी और भी जो बातें कही है कि to raise voice against any sort of discrimination, any sort of atrocity. This is very good message madam has given to all of us. Yeah, अन्याय जो करता है वो तो दोषी है ही, बाकी सहने वाला ज्यादा दोषी होता है. जो आपने बात कही है ये बहुत ही सही बात है. और बाकी मैडम ये चिंता का विषय ये भी है कि हमारे लोगों के ऊपर अभी भी जो एट्रोसिटीज है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है. इवन आफ्टर सो मैनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, या वी कॉल आवर that we are independent, but we read in all the newspapers that some atrocity happening here, या बलात्कार हो रहा है, this हो रहा है, that हो रहा है. नो. तो ये कब सुधरेगा? ये सब माहौल जो है, ये फ्रैटरनिटी, ये ब्रदरहुड, ये शांति, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, ये जो माहौल है ये कब खत्म होगा? उसके लिए हम सारे चिंतित और सारे वरीड है. जब तक ये ह्यूमन राइट्स का एजुकेशन सारे लोगों को अच्छे से नहीं मिल पाता है, संविधान के बारे में जो जानकारी लोगों को हमारे नहीं मिल जाती है, ऑल दिस शुड बी मेड कंपलसरी. संविधान का जो एटलीस्ट जो प्रियम्बल है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट शुड बी मेड कंपलसरी टू ऑल द स्कूल्स, यू नो. तो बच्चे के दिमाग में बचपन से ही हमने अगर ये सब जो अच्छी भावनाएं हैं हमारे देश के प्रति जो अगर हम लोग उनके मन में डाल पाए ना, तो दैट वुड बी रियली, आई मीन, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइड उसका होगा. क्योंकि आप अभी वाइस चांसलर हैं मैडम, तो आप ये एकेडमिक सर्कल में जाती है, आप एकेडमिक सर्कल में वहाँ पे मीटिंग्स जो होती है और बाकी आपका रिकमेंडेशंस है, ये सारा होता है. तो इसके बारे में भी ये हमारी जो चिंता है, क्योंकि हम लोग तो ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं, बाकी साथ में हम लोग वी आर आल्सो सोशली कंसर्न, क्योंकि
ये जो हम लोग जो आपने जैसे कहा कि एवरीबडी हैज स्ट्रगल्ड टू रीच दिस टू अप टू दिस लेवल, नो, तो दैट इज वेरी ट्रू। तो अभी प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हमको सोशल समाज में जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो गलत हो रहा है, हमारे भाइयों के बीच साथ में हो रहा है, हमारे बहनों के साथ में हो रहा है, वो इसके बारे में हम चिंतित है। although we are not, I mean, into that, उस एक्टिविटी में नहीं है, बट बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम लोग बहुत कंसर्न है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये जो माहौल जो हो रहा है ये कब सुधरेगा। तो ये ह्यूमन राइट्स का एजुकेशन इज वेरी वेरी कंपलसरी, ये सबको देने की जरूरत है। संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल, उसके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। तो एकेडमिक लेवल पे अगर ये जो विषय है आप उसको अगर थोड़ा सा देखेंगी और आगे अगर उसको बात कर पाएंगी तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। और मैडम दूसरी बात आपने कही है कि ओएनजीसी और आपका जो यूनिवर्सिटी है दुमका, उसके बारे में एक एसोसिएशन होना चाहिए, जो एक संबंध होना चाहिए टू 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 गेट तो मतलब एजुकेशन के फील्ड में पर्टिकुलरली स्कॉलरशिप्स और बाकी चीजें। तो मैडम आपको बताना चाहते हैं कि वी आर रियली वेरी प्राउड टू से दैट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ओएनजीसी, ये सीएसआर और कंपोनेंट प्लान के माध्यम से जो है काफी अच्छा एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। क्या our Mumbai area, I mean, our branch is limited to only Mumbai's area, this particular area. So we go to tribal areas of Palghar district, then Thane district, no, in other parts like Raigad district or some, और वहाँ पर जो भी ट्राइबल जो एरियाज है वहाँ पे हम लोग जितना भी कंपोनेंट प्लान के माध्यम से होता है, इवन सीएसआर के माध्यम से होता है, तो हम लोग करते हैं। बाकी एज फार एज योर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली दैट एरिया इज कंसर्न, our Bokaro branch is there. I mean, we have total 23 branches all over India, है ना मैडम? वो नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम में है, साउथ में है, दिल्ली में है, इधर बड़ौदा, अहमदाबाद, मेहसाणा, इधर सूरत में भी है। तो एक ब्रांच हमारी जो है वो वहाँ पर बोकारो में भी है। बोकारो में हमारे जो फ्रेंड्स है अभी जो वहाँ है, जो चेयरमैन और सेक्रेटरी है, तो उनके साथ में हम लोग बात करेंगे और आपका कनेक्ट करा देंगे आपके साथ में, सो दैट कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जो भी हम लोग बेस्ट पॉसिबल हमारे ओएनजीसी के तो कंपोनेंट प्लान बोलिए या सीएसआर के माध्यम से, तो उसके बारे में डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प द यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जो बातें हैं वो बहुत आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताई है कि ये जो एजुकेशन के फील्ड में जो ट्राइबल बच्चे हैं खासकर, जो दे आर वेरी बैकवर्ड, बहुत विलेजेस से आते हैं और बीच में जैसे आपने बताया कि हॉस्टल छोड़ के जाना पड़ता है, उनको खेत में काम करना पड़ता है, फिर देन अगेन दे कम बैक, दिस इज वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एक्चुअली। ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जब कोई बच्चा ले रहा है तो ही शुड बी गिवन दैट टाइम टू गेट एजुकेटेड, अपनी स्टडी करे, थोड़ा सा एक्सेल करे अपने एजुकेशन में। बाकी ये सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमको सबको साथ में हम काम करना पड़ेगा। एंड वी आर रियली, आई मीन, होपफुल मैडम कि हमारी जो बोकारो ब्रांच है ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की, they will talk to you on this issue particularly जो आपने बात कही है, और आपको इसमें डेफिनेटली जो भी पॉसिबल होगा वो हम कोशिश करेंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर नाइस टॉक ऑन दिस टॉपिक टुडे। और एक चीज हम लोग अभी एक काम कर लेते हैं मैडम, हम लोग कि एक दो क्वेश्चन अगर किसी के है तो इफ यू परमिट मी, है ना मैडम, टाइम है ना? या ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दो हमारे जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा ले लेते हैं। यू कैन, या रामबल जी आप है क्या? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बोलिए जरा। हाँ रामबल जी, अनम्यूट कीजिए। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, जो मैडम ने अभी जो बात कही है कि उनके यूनिवर्सिटी में क्या हम लोग ओएनजीसी क्या उनमें कंट्रीब्यूट कर सकता है? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? यस यस यस, या बोलिए बोलिए। आप सभी लोगों को जोहार। आवाज आ रही है? हाँ यस लाउड एंड क्लियर। मैं आरपी सिंह हूँ, ओएनजीसी बड़ोदरा में मैं अभी पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं बोकारो में ही था, मेरा पोस्टिंग।
और मैं वहाँ पे SC/ST कंपोनेंट प्लान और CSR के माध्यम से काफी काम भी किया हूँ। तो वहाँ पे ये CSR प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अगर वहाँ का ब्रांच अभी जो बोकारो के ब्रांच अगर इंटरेस्टेड है, अगर वो लोग चाहें तो ले सकते हैं। Okay. Yeah. CSR के आई थिंक CSR में तो काफी फंड रहता है, तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जी जी। तो या ओके, ठीक है। आई थिंक कल्याण इंदुआर है अभी सेक्रेटरी, तो या मैं भी उनसे बात करता हूँ हाँ जी, और उनको मैं इन्फॉर्म करता हूँ, तो मैडम से वो कांटेक्ट करके यस। तो जो भी पॉसिबल होगा हम लोग को Yes, sir, पूरा definitely कोशिश करेंगे, या है ना। ठीक है, थैंक यू आरबी सिंह जी। या Thank you. थैंक यू। ओके, अभी एक दो क्वेश्चन मैडम हम लोग ले लेते हैं। ये मिस्टर चेतन कुमार है। या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, चेतन साहब बोलिए। या गो अहेड। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मैम सोना झहरिया बेंच, really it was very inspiring and insightful beyond the Constitution of India views of to serve the benefit of real and genuine tribals and the social people. Really, I'm very overwhelmed by listening you for the first time. As you know that you may not be knowing, but I want to introduce myself. Dr. Chetan Kumar Masaram, Principal, SN Moore College of Arts, Commerce and Science, Srimati D.D. Saraf Science College, sir, affiliated to Rajasthan Tukolji Maharaj Nagpur University, Nagpur, Maharashtra, and I'm also serving the university as a Senate member of the university, and being belonging to the scheduled tribe, I'm very much feeling today the proud moment for today's celebration. Not I can't say celebration, it is a pay to the homage to Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda ji, who has fight for the real in a very early age of his I think life, and really at the age of 24 years, how the brain of his was working for the benefit of fighting for the thinking of the Birsa Munda ji for to give proper directions to the tribal people suffering a lot with the Britishers and the all other people also. So I must congratulate Honorable Dr. Madam. Really, it was a very useful information you have given, that the tribal people, especially the students, don't get sufficient time for their studies also, for their education also. And this is a very pity. I'm very sorry, but it is a very pity situation of the government of India is as well for the field of education for our tribal people and the socially backward people especially. So the government should also think about this, and people attached to the government working together. They should guide and they should convince the government that this type of business आपकी आवाज नहीं आ रही है बसराम जी, आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है। This situation should not be after 73 years of our independence. This should have of education field for the real and genuine people who work for the independence of India, and they are now suffering a lot in terms of basic thing, that is the education, in terms of basic requirements of their life, surviving even. So I think there are very major problems of the social and tribal people especially, and everyone should think over it. The government should provide a proper way to uplift these tribal people in all directions,
the wholesome Yeah. bits of Yeah. development should be there. So, madam, please, if you have time sufficient, I think as per your assurance that you may enlighten the special part of the question is socio-economic as well as the political insight of Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda on these aspects for the tribal people. ठीक है. Yeah. मैसराम जी. Yeah. ठीक है. मैडम कुछ आप would you like to comment on this? Some comments from your side? I think very pertinent question raised by No, I know. Dr. Yeah, Mashram, but yeah. it's again including there was another question by Mr. Rambal Singh. So I think those are interlinked, and Yeah. it can take another one day or couple of days deliberations. अगर हम academics से लेके you know उनको executable goals में लाने की कोशिश करें. जी. So that's very extensive, and I think आज ये cover नहीं हो सकता. ठीक है. Yeah. Because Mr. Singh had also raised something, and I said that can be dealt with separately. Yeah. But एक चीज जो मैंने comment में क्योंकि उसमें मैं unmute नहीं कर पा रही थी, आपने सोम कुमार जी ने जब summarize कर रहे थे तो कहा कि injustice खुद के साथ ना और अपने साथ हो रहा है, परंतु साथ साथ देखने वाले का क्या? You know, the person who is also watching it happen. So उनका भी responsibility. But there was another thing which I tried to answer in between. Yeah, thank you very much about mentioning. Thank you very much for mentioning about the Bokaro chapter of your association. जी. So if one of you can help me contact them. बिल्कुल मैं आपसे शेयर करूंगा मैडम. Yeah. I'll share with you. That would be a great thing for me to. And if they can, in some way, we can start talking and see what is feasible. Definitely. Because I mean, I want to leave that footprint here. I will also have to move on, I'm sure. Like, these are the time-bound things. और मुझे कभी-कभी अच्छा लगता है कि ये खाना बदोश की तरह एक जगह से दूसरे जगह रहो. नहीं तो एक जगह रहते काई लग जाती. तो I think new places have new challenges and new roles also have new challenges. Yeah. Now I remember when it was being mentioned about. I mean, why to wait for education and formal education to teach our children about Constitution and the responsibilities of others enshrined in the Constitution? I think ये बातें हम घर पे कर सकते हैं. Whatever हम बाकी चीजों के लिए तो घर पे ट्यूशन का अरेंजमेंट करते हैं ना. Whatever we are dissatisfied about the school, वो हम घर पे या तो खुद ही पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं या ट्यूशन करवा लेते हैं. तो why not for this? So I think we should not wait for others to at least make our children aware of Constitution and the power and also things which are enshrined in the Constitution. And we should do that education at home. जी. Yeah, one thing I would like to add, madam, Maharashtra government has already taken a decision that in the schools, so in the जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जैसे वो प्रेयर होता है उसके बाद में दे स्टार्ट रीडिंग दैट प्रीएम्बल. Yes. जी. इट इज रियली वेरी गुड इनिशिएटिव बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट. Yes. तो ये अगर क्योंकि सारा जो एजुकेशन जो होता है ये सारे जो आदतें हैं या जो शिक्षा है इनकलकेट वहां से होती है स्कूल में. घर में इट विल बी सॉर्ट ऑफ लिमिटेड थिंग. स्कूल में सभी all the children they will read preamble, साथ में अगर पढ़ेंगे तो ये जो एक भावना जो उनमें पैदा होगी it has a different different impact. उनका मेंटालिटी जो है उनका सोच है वो थोड़ा बदल सकता है. Maharashtra has been leader in many respects for the country. But I think अगर मैं जो चर्चा मैं वो करने की एक्सपेक्ट कर रही थी तो उसके लिए पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा. बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी तो बनती है. That is very true. But the kind of questions children can ask at home, I think they'll not be able to ask in the school.
I can guarantee you, if they start asking the hard questions, those questions themselves will Yeah. get them isolated. जी, So जी, I जी. think talking about those issues at home is safe, because home is safer than school. वहां जी, चांट कर लेंगे, पूरे प्रियम्बल को चांट कर लेंगे, मेमोराइज Yeah. कर लेंगे, जैसे हम बहुत सारे गीत और प्रेयर्स जो स्कूल में जी, जी, असेंबलीज जी. में होते हैं उनको जी. मेमोराइज कर लेते हैं. बट हाउ अबाउट हैविंग अ वेरी बुद्धि को ट्रिगर करने वाली चीजें तो घर पे करना चाहिए. वो तो बात सही है मैडम. और इट शुड बी डन रिलीजियसली एक्चुअली, चाहे वो घर में करे कहीं भी करे, इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे और रिलीजियसली सिंसियरली करे तो कुछ इसका फर्क पड़ सकता है. या नाउ Yeah. विल टेक लास्ट क्वेश्चन. मिस्टर एनके सोनारे जी इज देयर. या सोनारे साहब बोलिए. हाँ मैडम. हाँ जय भीम मैडम. जय भीम, जय भीम. जय भीम. आप लास्ट ईयर हमने बात किए थे, हमारे दोस्त जो है यश अलोने हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, और उन्होंने आपके बारे में बताया था, फिर मैंने बात भी किया आपके साथ में और शुभकामनाएं भी दी थी. तो आपसे बड़ी अपेक्षा है हमारी है कि आदिवासी समाज की हमारी एक वाइस चांसलर है पूरे इंडिया में, और जो अम्बेडकराई थॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट पे बात करती है. तो मेरे आपसे एक अपेक्षा ये थी कि आप रहते हुए आपके एसडीएम यूनिवर्सिटी में, सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ अम्बेडकर थॉट एंड साथ में बिरसा मुंडा, डिपार्टमेंट ऑफ बिरसा स्टडीज ऑन बिरसा मुंडा डॉक्टर अम्बेडकर, इस तरह से अगर वो होता है तो क्या होगा कि आपका अभी 3 साल अपॉइंटमेंट है, उसके बाद क्या होगा भी पता नहीं, कोई भी वो दूसरा आएगा तो वो डिपार्टमेंट बंद नहीं कर पाएगा. तो जब तक अम्बेडकर धारा के से नहीं आते हैं तब तक जो है ये आगे की लड़ाई बड़ी डिफिकल्ट लड़ाई है. जैसा आपने कहा है कि अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर में कोई 5% ही कन्विक्शन रेट है, 91% लोग छूट जाते हैं. और इतना वायलेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो इतना वायलेशन है. अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमारी एक प्रोफेसर आदिवासी समाज का, वो आपको पता है, वो जो लड़ रही है, वो उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको ये बेइज्जती कर रहे हैं. और कई अभी आईआईटीज में और आईआईएम में आदिवासी प्रोफेसर लोग है भी नहीं है, ऐसी भी स्थिति है. तो 2 चीजें मेरी आपसे अपेक्षा है कि एक तो अम्बेडकर का आपका डिपार्टमेंट बने वहां पर. आपसे अपेक्षा करता हूँ जिस तरह गवर्नमेंट ओवरसीज स्कॉलरशिप दे रही है एससी और एसटी के लिए, वैसे केरला गवर्नमेंट ओपन स्कॉलरशिप दे रही है, और आपका कर्नाटक गवर्नमेंट 400 स्कॉलरशिप दे रही है फॉरेन में जाने के लिए. उसमें 200 पीजी के लिए दे रही है, 200 पीएचडी के लिए दे रही है. सिमिलरली आंध्रा गवर्नमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट भी कर रही है. तो आदिवासी समाज मुख्यमंत्री है आपके स्टेट में, तो उन्होंने तो सबसे पहले करना चाहिए. तो मैं ये चाहूंगा कि आपके लेवल पे आप मुख्यमंत्री को कन्विंस कीजिएगा, और ये इसी साल से जो है वो 2021-22 में आपके गवर्नमेंट की झारखंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एससी एंड एसटी बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये शुरू हो जाएगा मैडम, आपका परमानेंट काम हो जाएगा, 10 जन्मों का काम हो जाएगा. और दूसरा ये तो मेरा आपसे गुजारिश थी कि जो हमारे आदिवासी समाज के जो अधिकारी है, इंजीनियर ऑफिसर्स है, कुछ तो बड़े ऊंचे लेवल पे गए हैं, कोई जीएम लेवल पे गए, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल तक भी गए हैं, सीनियर लेवल पे लोग हैं, लेकिन वो इस मूवमेंट में आना नहीं चाहते. अभी हमारे यहाँ एसोसिएशन में आदिवासी के लिए हम लोगों ने 50% पोस्ट हमारी रिजर्व रखा है एसोसिएशन के अंदर में, ट्राइब का सेक्रेटरी होता है, लेकिन वो पोस्ट में कोई फॉर्म भरने के लिए रेडी नहीं होता है, कोई मीटिंग में आने के लिए भी तैयार नहीं होते. तो मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द जो है इसके बारे में भी थोड़ा आप इनको बोले आज के इस घड़ी में, क्योंकि हम बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं, लेकिन आप बोलेंगे तो लोग जरूर सुनेंगे. थैंक यू. बोलिए मैडम. जी, आपने सोनारे जी, आपके साथ तो ऑलमोस्ट लगभग हर दिन आपके सारे पोस्ट मुझे मिलते हैं व्हाट्सएप से. कभी कभार मुझे समय मिलता है तो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ. बट सोनारे जी ने बहुत पहले ही मुझसे कहा था कि ये अम्बेडकर थॉट्स पर एक डिपार्टमेंट की बात हो. इस लाइन में मैं सोच रही हूँ कैसे उसको ये किया जाए. तो सोनारे जी, डोंट बी डिसहार्टेंड. मैं आई एम आल्सो अ पर्सन हु डजंट गिव अप. मैं ऐसे नहीं गिव अप करती. एंड मुझे पता है शायद हमारे मुख्यमंत्री ने इस तरह का स्कॉलरशिप अनाउंस किया है. तो आपकी दूसरी बात भी आ जाती है. तीसरी बात थी जो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ सम ऑफ द ऑफिसर्स
आई थिंक एक चीज जो मुझे लगता है ये मैं बोलना चाह रही थी और छूट गया था कि बिरसा मुंडा के आइडेंटिटी और उनकी आइडेंटिटी उनके काम धाम से और जिस प्रकार से उन्होंने किया था उससे ये आई हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट इट फॉर माई सेल्फ इस तरह से he was very proud of whom he was. उनको he was very proud of his identity. और इसीलिए उन्होंने जो छोटा सा जीवन का स्पैन था उसी में इस तरह का एक जो अपने समाज के आइडेंटिटी के स्थान जब प्रहार हो रहा था तो उस पर ये किया था, तो he was very proud of his identity. और इसी तरह से I have been raised, मतलब मैंने कहीं और भी बोला कि I have had, और जब मेरे इंट्रोडक्शन में भी शायद करगांव जी ने बोला था कि I have a legacy of my father, my parents, मतलब बहुत मेरे पेरेंट्स अपने आप में radicals रहे हैं. तो one thing they have tried to tell us, you know, I mean, आप और आपसे और मुझसे अभी ये सवाल मैं करूंगी, आप सब मुस्कुरा पड़ेंगे. आप जब पैदा होने के पहले आपको पूछा तो नहीं गया था ना आप पैदा होना चाहते हो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता है जन्म के पहले, वो पैदा होने के बाद मल्टीपल चॉइस आते हैं. ओके, सो दिस वाज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन. हमें जैसे भी हमारी जिन भी मान्यताओं के तहत हम मान लेते हैं कि वी हैव, मुझे इस फैमिली में पैदा होने का मौका मिला. नाउ दोस आर either वहाँ privileges हैं और constraints हैं. We have to live with it. But never not be proud of yourself. मतलब अपने identity को कभी भी undermine ना करो and try to be proud of your identity. तो अपने identity और जैसा हम सबों को इस परिस्थिति से गुजरना हुआ होगा, आपको और मुझे डिमीन या हमारे पोटेंशियल को रिड्यूस क्यों किया जाता है? हमारी आइडेंटिटी के कारण ना. अगर हमारी आइडेंटिटी के कारण वो चैलेंज है तो उसको ओवरकम करके तो आप आगे ना, यहाँ जहां आप हैं. तो अपनी आइडेंटिटी के प्रति प्राउड होना हमें सीखना पड़ेगा. जी. हम जिन लोगों के, आदिवासियों के लिए स्पेशली, भाषा हमारी संस्कृति में नाचने एक अलग चीज है, पर भाषा हमारी आइडेंटिटी है. अगर हम उसको छोड़ देंगे, जगह से तो हम निकल के आ गए, हम लोग शहरों में भी चले गए. ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात हुई कि मैं 40 साल झारखंड के बाहर रहने के बाद आने सकी हूँ, तो अपनी फिर से मातृभूमि में, जन्मभूमि में आने सकी हूँ. तो परंतु हमारी आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली हर फ्लेवर के प्रति एक प्राइड कल्टीवेट करना पड़ेगा. क्योंकि हमारी भाषाओं को बोला गया कि अरे अनकूत है, हमारी संस्कृति को बोला गया अनसिविलाइज्ड है. अभी आज की तारीख में यही बोला जा रहा है कि आदिवासी ही पर्यावरण के संरक्षक रहे थे. अरे बोल क्या रहे हैं? You know, those who are criticizing, what are they saying? Conflicting चीजें तो एक साथ नहीं आ सकती ना. आप और मैं लॉजिक को ज्यादा समझते हैं, राइट? तो इसलिए so therefore I think we need to now start reclaiming and restoring हमारे cultural identity and restoring the dignity and the pride that is due. जी. और अगर हम प्राउड अपनी आइडेंटिटी के प्रति फील करने लगेंगे तो शायद मुझे लगता है आइसोलेशन या उससे निकल आने के लिए थोड़ा ज्यादा ये मिलेगा, क्योंकि वहां हम, और डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है. तो अगर SC/ST फोरम में भी, एसोसिएशन में भी, जब तक हम उसको और डाइवर्स, एक व्यक्ति के डाइवर्स बैकग्राउंड से ये एसोसिएशन एनरिच हो सकता है. जब तक हम उस तरह से इसको अप्रोच, इस इशू को नहीं अप्रोच करेंगे तो आई थिंक विल स्टिल बी शाई ऑफ बीइंग सीन इन द एसोसिएशन. ये मेरी सोच है. It can be totally theoretical as an academician, क्योंकि मैं 30 साल से ज्यादा पढ़ा ही रही हूँ, तो but then this is how I feel very strongly. और मैंने JNU में स्टूडेंट्स को encourage करने की कोशिश की थी कि आप अगर नहीं आइडेंटिफाई होना चाहते तो आप खुद से छुप रहे हैं, बाकी सब लोग आपको जानते हैं, तो आप छुप किस रहे हैं? जी. You know, yeah, that is don't so, fool yourself. Don't fool yourself. आप खुद से छुप रहे हैं, और उससे फायदा किसका हो रहा है? जो चाहते हैं कि आप सामने ना आए, उनका फायदा हो रहा है. जी.
So therefore, to add to the strength of the fraternity की बात इसी तरह तो आती है. To add to the strength of fraternity, I think diversity के through हम उसको और enrich करने के attitude से आएंगे. So I think we'll be less hesitant. ये मेरी सोच है. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. बहुत अच्छी ये सुधार साहब ने अच्छा सजेशन दिया था, ये डॉक्टर अम्बेडकर थॉट्स. अभी तो नागपुर जो यूनिवर्सिटी है मैडम, वहाँ तो चेयर हो गई है नागपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर चेयर ना, है ना? Yeah, it's easier to implement to this concept of chair. जी जी. अंबेडकर चेयर हो जाता है, बिरसा मुंडा चेयर हो जाता है, सुकानू चेयर हो जाता है, तिलका मांझी चेयर हो जाता है. तो we can expect even solid outcomes. क्योंकि प्रोफेसर्स अपॉइंट हो जाएंगे उनके. So this is a easier way of implementing, which is in the pipeline. तो डिपार्टमेंट तो शायद नहीं, पर ये स्पेशल चेयर्स तो हो सकते हैं. जी जी जी. ओके, थैंक यू. और अभी मिस्टर राम राय टुडू जी है हमारे मित्र, चीफ जनरल मैनेजर गेल. उनका टुडू जी आप थोड़ा सा बोलिए ना आज का. हाँ बोलिए. जोहार मैडम मींज और मिस्टर जगेश समकुमार जी और उसका टीम. मैडम, दिस इज जस्ट a historic beginning between ONGC and ma'am, and also to some extent GAIL is also doing some CSR activities. Let us see how best we can integrate ourselves with this Sidhu Kanhu Murmu University. And I am really overwhelmed by seeing this event, because this ONGC Mumbai chapter is very active in arranging this sort of activities within a very short period. So really this is just a historic beginning, and let us hope we together, we the so-called the intellectuals of our society, let us do our best, because everybody know we are many things to be done. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for accepting the invitation of ONGC. And I think everybody is very happy to see you and listen to you. Thank you, ma'am, and thank you, Jogesh ji. Thank you, Tudu ji. Because of you only, this program could have been arranged, no? रात को मुझे याद आई, शाम यही टाइम होगा, शाम को मैं जब बैठा था तो यू जस्ट मैसेज में कि ये प्रोग्राम करना चाहिए. तो आई सेड ओके, गो अहेड, जस्ट पिक द स्पीकर. सडनली देखा 5 मिनट में मैडम से कंफर्मेशन भी आ गया. इमीडिएटली मैं रात को सारा बना दिया और सर्कुलेट भी हो गया. सी, सो वी आर वर्किंग वेरी फास्ट. और वी आर रियली थैंकफुल टू यू टुडू जी कि ये आपकी वजह से मैडम हमारे बीच में यहाँ पे आज की भी मतलब डिस्ट्रिक्ट स्पीकर करके हमारे बीच में है. वी आर रियली ग्लैड, वेरी ग्रेटफुल टू यू. Yeah, I am equally glad to see all these people, and ma'am, I'm also seeing ma'am for the first time. अच्छा, ओके, थैंक यू. अभी मिस्टर अवधेश प्रसाद जी है लास्ट, हमारे मेहसाणा ब्रांच के चेयरमैन है. वो थोड़ा सा 2 मिनट बोलिए, 1 मिनट. अवधेश जी. जय जोहार. हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ, अभी आ रही है. अभी आ रही है. हाँ. तो जय जोहार. हमारे चीफ गेस्ट जो है सोना जारिया मैडम, जो वाइस चांसलर हैं, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. और मैडम ने बहुत विस्तृत रूप से बताया बिरसा मुंडा जी के बारे में. तो मैडम जी से ये गुजारिश करूंगा कि उनकी हिस्ट्री जो है हमें उपलब्ध कराएं. जो है वो हिस्ट्री हमें ज्यादा नहीं मिल पाती है, गूगल पे कहीं कहीं सर्च करते तो मिलता है, लेकिन उनकी जो बुकें हैं उनको कहीं अगर हमें मिल जाए तो और ज्यादा हमको जानकारी मिलेगी. और बिरसा मुंडा जी के अलावा दूसरे और जो भी हमारे महापुरुष हुए आदिवासी समाज से, उनकी भी बारे में जानकारी मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जी. और मैडम को आज सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा. और थैंक्स टू सोमकुमार जी, आपने जो है ये शॉर्ट टाइम में ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया. फर्स्ट टाइम जो है ONGC में फर्स्ट टाइम ये बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पे जो है मैडम ये ऑर्गेनाइज किया बॉम्बे ने. तो मैं सोमकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच अवधेश जी.
हाँ। और हमारा तो अभी प्रयत्न ये रहता है कि जो भी अच्छे अच्छे हमारे स्पीकर्स है, ये आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि जो महापुरुष है उनकी जीवनियाँ जो है वो उस पर रिसर्च हो और उसमें एक ऑथेंटिक कुछ पब्लिश हो। तो अभी मैं, क्योंकि मैडम जो है अभी वाइस चांसलर है, मैडम उसमें एकेडमिक्स में है, तो अभी ये जो फील्ड है ये उनका फील्ड है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ लेट अस होप कि कुछ अच्छा होगा। और जो भी बहुजन महानायक है उनकी उनकी सारी जो रियल स्टोरीज है, वो इंस्पायरिंग जो उनके थॉट्स है ना, ये देश के प्रति उनका जो प्यार है, जो देश के प्रति उनका जो उन्होंने जो काम किए हैं वो लोगों के सामने आए राइट पर्सपेक्टिव में, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच अवधेश जी। थैंक यू। ओके ओके, नाउ फ्रेंड्स, नाउ आई थिंक एक मिनट, हाँ डूडू जी आप कुछ बोल रहे हैं और आपका No, हैंड, no, no, it is wrongly pressed. ओह सॉरी, ओके कोई बात नहीं, चलिए ओके सो तो एक चीज सर बताऊंगा जस्ट कि हाँ आने वाले टाइम में अगर ओपन हो जाता है और कोविड का पेंडेमिक टाइम खत्म हो जाता है, तो अगर हमारा उसमें हम मैडम को एज ए गेस्ट हम हाँ हाँ बिल्कुल बुलाना बिल्कुल, चाहेंगे, वो या मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल, बहुत गौरवान्वित नहीं होगा बिल्कुल हमारे मैडम को हम बुलाना चाहते हैं, जी। बाकी ये कोविड ने पिछले डेढ़ डेढ़ साल से सबको जकड़ के रखा हुआ है, कहीं जी जी बाहर नहीं बिल्कुल जा बिल्कुल। सकते। तो जब हाँ अभी ये सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल क्या है कि हम जी ऑनलाइन बिल्कुल। मिले ना, तो जी जी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेट अस होप कि सिचुएशन विल इम्प्रूव और हम लोग रूबरू मैडम से मिलेंगे और उनसे सुनेंगे। बिल्कुल। हाँ या थैंक यू। थैंक यू अवधेश जी। So, okay, friends, I think now it's time to close the program, and we are really grateful to Madam for accepting our invite, and also हम सब की ओर से बहुत बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं कि उन्होंने बराबर एक साल जो है, एक वर्ष वाइस चांसलर पूरा एज ए वाइस चांसलर उन्होंने पूरा किया हुआ है। इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर एवरीबडी। और लेट अस होप कि उनके उनके लीडरशिप में, हाँ, और भी अच्छे अच्छे काम हो, और जो जो उनका सपना है कि हम लोग साथ में काम करेंगे वो भी फुलफिल हो। विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट डेफिनेटली। और इसके साथ में जो हमारे जितने भी यहाँ का साथी है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जैसे गेल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, झारखंड गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, देन बहुत सारे और भी, इवन गुजरात गवर्नमेंट के हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स इस प्रोग्राम में हैं। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे मिस्टर सुनील देशपांडे जी, हमारे ऑफिस बेरर, मैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। या मिस्टर सुनील, गो अहेड। Thank you, Somkar sir. It's my pleasure to propose a vote of thanks. But before that, I would like to pay my tribute to Jananayak Birsa Munde ji on the occasion of his 121st death anniversary. Today's discourse uh, given by Honorable Professor Dr. Sona Jharia, means Vice Chancellor Madam, was very enlightening. In fact, we got to know more about the unknown facts about Birsa Munde ji. His struggle was really very motivational and inspiring. Though he lived a very short span of life, but how he mobilized the tribal community, the remark he left of his leadership, which led to the act which is known as Chota Nagpur Tenancy Act, which prohibits the transfer of tribal lands to non-tribal persons. Madam has also explained how to carry forward the work of Birsa Munde ji by our own way, for the benefit of our people, by means of CSR activity, by means of hand-holding of underprivileged persons. So Madam has covered all the aspect and other things also. Apart from that, one suggestion which was very good suggestion given by Madam for compiling these struggle stories, how to overcome the problems. So this document, like Tumse Na Ho Payega, the story of this will be a motivational for the younger generations. So they will get to learn the things. Otherwise, this will vanish. So a proper compilation of the documents is also a very good suggestion given by ma'am. On behalf of our association, All India SC/ST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai branch,
Thank you very much, ma'am, for accepting our invite and for the talk. I also thanks all the participants for attending today's program. I also thanks our association for organizing this wonderful program. Thank you one and all. Over to you, sir. Thank you, Sunil bhai. Or he was Mr. Sunil Deshpande. He is executive engineer in ONGC. So, madam, we have very learned team. Yeah, मतलब 5 total GM है हमारे association में, and then all officers, most of them are promoted to officers. और बहुत सारे काफी, and we are like very active team. We working together. एक चीज मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट हुआ था, है ना, मार्च में, तो वी केम टुगेदर ऑल द मेंबर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, नॉट ऑल द, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम मुंबई ब्रांच, एंड वी कलेक्टेड 10 लाख रुपीज individual through individual contributions, and we distributed ration kits throughout Mumbai, every area, tribal district, Palghar. I personally went there, the tribal area जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे इतने छोटे छोटे घर है, बच्चे बच्चे का मतलब जो उनके कपड़े नहीं है बराबर, ऐसे एरिया में हम लोग जाके वो उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया. Then through CSR also we did food distribution. Yeah. So our branch is continuously, in doing social work, social activities, other than looking after welfare of employees, promotion, transfer, yeah, or भी कहीं. But yes, we are committed to Baba Saheb Ambedkar's mission. और हम लोग एज अ टीम वी वर्क, और ये बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल मुंबई ब्रांच ने सेट किया, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके जो गूंज है वो काफी दूर तक चली गई है, पूरे इंडिया में गई है, काफी न्यूज़पेपर ने कवर किया है कि एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है वो 10 लाख रुपए कोविड टाइम में इकट्ठा करती है, और जो नीडी लोग है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन एंड लैंग्वेज, एंड एथनिसिटी, कुछ नहीं है, सबको हमने उनको उसमें कवर किया है, मैडम. सो वी आर रियली, आई मीन, very happy to say that कि yes, Mumbai branch is doing really good, और इसमें पूरा हमारे टीम का इसमें कोऑपरेशन रहता है. सो आज का ये प्रोग्राम है, आज का जो 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 आपने हमें एनलाइटन किया, आपके जो आपका जो थॉट्स है उसके बारे में, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, मैडम, एंड लेट अस होप कि विल मीट अगेन इन सम अदर ओकेजन, सम अदर टॉपिक. या तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. जस्ट लास्ट थोड़ा एक कमेंट, या प्लीज. या है मैडम, अनम्यूट थोड़ा करें. या ओके. I think when we say Jai Bhim or Jai Birsa, I think that as I was speaking in another, इनके नाम से अगर हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते हैं ना जी, I think that तो कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है. And the true Shraddhanjali to all our icons is when we utter their name, हमारे अंदर कुछ सिहरन हो and कुछ करने की तमन्ना जरूर हो. बिल्कुल. With these words, I would like to say Okay. thank you very much. Thank you very much. And it was very nice being amongst you. I could see some very young persons as well as, तो इसलिए बड़ा अच्छा age का spectrum भी दिखाई दे रहा था. And so all the best to all of you. Very commendable group that you are, and may you again have more and more glorious achievements to talk about and leave a nice legacy for the younger ones too. Thank you very much, madam, and now see you again, all. Yes. Everybody, Jai Bhim, Jai Birsa, Jai Birsa. Yeah. Johar. Take care of yourself. Yeah. Okay. Bye bye. Bye bye.